Good morning, friends. Welcome to my 40th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding matrices. I have told that matrices are rectangular arrangement of numbers or symbols within two brackets, and matrices are usually represented by some capital letter. Next, we have discussed different types of matrix. We have discussed regarding row matrix, we have discussed regarding column matrix, we have discussed regarding square matrix, we have discussed regarding diagonal matrix, we have discussed all those type of matrix. We have discussed null matrix. Next, we have discussed regarding two important varieties of matrix. One is equal matrix, another is equivalent matrix or comparable matrix. We have discussed all those concepts in our previous class. In today's class, we will discuss regarding basic arithmetic operation of matrices. What is basic arithmetic operation? Basic arithmetic operation simply means addition, subtraction, multiplication, and division. So today we will discuss regarding addition, subtraction, multiplication, and division of matrices. Am I clear? So these are known as basic arithmetic operation of matrices. There are certain conditions to be fulfilled before doing the arithmetic operation of the matrices. We will discuss what are the conditions for addition, what are the conditions for subtraction, what are the conditions for multiplication, what are the conditions for division of matrix. Okay, we'll discuss all those things. So before discussing details regarding arithmetic operation on matrices, let me first share my screen with you, then we'll discuss details regarding it. Okay, one second. Okay, friends, we are discussing regarding arithmetic operation of matrices. I have told that arithmetic operation means first point number one, basic arithmetic operation means, what is arithmetic operation? First, addition of matrices, addition of matrices. Second, subtraction of matrices, subtraction of matrices, addition of matrix, subtraction of matrix. Third, multiplication of matrices, multiplication of matrices, and the last, division of matrix, division of matrices. So we will discuss regarding these things: addition, subtraction, multiplication, and division, but all are of matrix. Okay, next point likho. The operations can be performed and on matrices. The basic arithmetic operations. What is basic arithmetic operations? We have already discussed: addition, comma subtraction, comma multiplication, comma division. The basic arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, can be performed on matrices, can be performed on matrices subject to certain conditions and procedures. Certain conditions and procedures. So
Here we will discuss different conditions and procedures used for addition, for subtraction, for multiplication, for division. तो अभी हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स. लेकिन ये सब होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स. सो हर जगह पर कुछ कंडीशन है, कुछ प्रोसीजर है. इस सबको कंडीशन और प्रोसीजर के बारे में अभी हम क्लास में बात करेंगे. शुरू करेंगे किससे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो हेडिंग कीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. हाँ, हेडिंग कीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. Addition of matrices. How matrix will be added? It means they will, in this case there will be two matrices. One is matrix A, another is matrix B. We have to add these two matrices. But what are the conditions under which two matrices can be added? First we have to discuss. So first पढ़ेंगे what are the conditions for addition. First point, condition for addition. दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, उसका कंडीशन क्या है. पहले लिखेंगे कंडीशन क्या है. तो लिखेंगे द मैट्रिसेस टू बी एडेड टू ईच अदर the matrices to be added to each other must be comparable matrix. What is comparable matrix? कल पढ़े थे. What is comparable matrix? कंपेरेबल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स कंपेरेबल है. अगर क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट का जितना रो जितना कॉलम है, दूसरे में उतना रो उतना कॉलम है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है क्या? तो एडिशन किसका हो सकता है? ओनली कंपेरेबल मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है. फुल स्टॉप. इट मींस the matrices to be added must have equal number of rows and columns. अगर दो मैट्रिक्स का इक्वल नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम नहीं है, तो वो दोनों क्या नहीं हो सकते हैं? ऐड नहीं हो सकते हैं. एडिशन का बेसिक कंडीशन क्या है? ये इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दो मैट्रिक्स के अंदर में होना चाहिए. एग्जांपल लिखिए. एग्जांपल लिखिए. सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It's a matrix. Which type of matrix? 3 row 3 column. It's a 3 by 3 matrix. Next, B is another matrix. What are the another matrix? One is 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ये भी एक मैट्रिक्स है. समझ में आ रहा है क्या? इसमें भी कितना रो है? सर इसमें भी 3 रो है, 3 कॉलम है. तो यहां पर A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज कंपेरेबल टू B. तो यहां पर एडिशन हो सकता है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है. फाइंड आउट A प्लस B. A प्लस B मतलब एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्सेस. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं.
एग्जाम्पल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्या करेंगे, देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, ए और बी कंपेरेबल मैट्रिसेस है, पहले तो एडिशन हो सकता है, तो लिखेंगे इन द एबव क्वेश्चन, in the above question A and B are comparable matrices. कंपेरेबल मतलब इसका जितना रो जितना कॉलम है, इसका उतना रो उतना कॉलम है। हेंस these matrices can be added. ये मैट्रिक्स क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। हमको क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमको ए प्लस बी निकालना है, तो देखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए के बदले में मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, प्लस बी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 6 7 8 9 10 11, नेक्स्ट 12 13 14, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये बी का वैल्यू दिया हुआ है। अभी हमको ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी में क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। किससे ऐड करते हैं, देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू का मतलब क्या है, देखेंगे इसका फर्स्ट आइटम कितना है, 1 है, इसका फर्स्ट आइटम कितना है, 6 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा, इसका आइटम कितना हो जाएगा 1 प्लस 6। अच्छा, ये R1 में सेकेंड आइटम इसका 2 है, इसका 7 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 7। नेक्स्ट थर्ड आइटम 3 है, इसका 8 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8। कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम को ऐड कर देंगे। यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट आइटम 4, यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट आइटम 9, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10। फर्स्ट मैट्रिक्स में 6 है, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग 11 है, तो 6 प्लस 11। थर्ड मैट्रिक्स में फर्स्ट आइटम 7 है, तो 7, इसमें 12 है, 7 प्लस 12। नेक्स्ट यहाँ पर कितना है 8 और 13, तो हो जाएगा 8 प्लस 13। नेक्स्ट 9, 9 और इसमें 14, 9 प्लस 14। बेटा ऐड हो गया, अगर ऐड हो गया इसका वैल्यू अभी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 है 7, नेक्स्ट 2 प्लस 7, 2 प्लस 7 है 9, नेक्स्ट 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 है 11, नेक्स्ट 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 है 13। अच्छा 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 है 15, नेक्स्ट 6 प्लस 11, 6 प्लस 11 है 17, नेक्स्ट 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 है 19, नेक्स्ट 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 है 21, नेक्स्ट 9 प्लस 14, 9 प्लस 14 है 23। तो हमको a प्लस बी मिल गया, दैट इज इक्वल टू 7 9 11 13 15 17 19 21 23। अच्छा इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, ये इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। इसमें फर्स्ट केस में जितना रो जितना कॉलम था, सेकंड केस में भी उतना रो उतना कॉलम रहेगा, और रिजल्ट में भी उतना रो उतना कॉलम रहेगा। बेटा a प्लस बी समझ में आ रहा है क्या, क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम को ऐड कर देने से हमको a प्लस बी आ जाता है। समझ में आ रहा है क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ओवर, समझ में आ रहा है क्या। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब
ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में मिलाओ, जो वैल्यू आएगा, बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में मिलाओ, वही वैल्यू आएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसका, एडिशन का। व्हाट इज ए is a matrix, what is b is a matrix, and what is c is another matrix। तीन मैट्रिक्स को लेकर दो प्रॉपर्टी इसका इंपॉर्टेंट है किसमें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। एक बार एडिशन समझ में आ गया, हम नेक्स्ट आइटम में जाएंगे, दैट इज नोन एज सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। वन नंबर 2, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, दो मैट्रिक्स से ए माइनस बी यहां पर निकालना है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसका कंडीशन क्या है, उसका रूल क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कुछ है तो बात करेंगे उसमें। फर्स्ट लिखेंगे कंडीशन फॉर सब्सट्रैक्शन, कंडीशन फॉर सब्सट्रैक्शन। बेटा एडिशन का जो रूल था सब्सट्रैक्शन में भी वही रूल लगेगा, एडिशन में जैसा रूल था सब्सट्रैक्शन में वही रूल लगेगा। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का रूल क्या है पहले लिखते हैं। फर्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन, फर्स्ट फॉर सब्सट्रैक्शन both the matrix must be comparable in nature। What is comparable, comparable को हम बोलते हैं equivalent in nature। comparable लिख सकते हैं या नहीं तो क्या लिखेंगे, equivalent in nature। equivalent का मतलब क्या है, A must be equivalent to B, तो जाकर सब्सट्रैक्शन हो सकता है। सब्सट्रैक्शन का मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब, इट मींस बोथ द मैट्रिक्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो लिखेंगे इट मींस both the matrix must have same number of row and same number of columns। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितना रो होगा सेकेंड मैट्रिक्स में उतना रो होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा सेकेंड मैट्रिक्स में उतना कॉलम होगा, तो जाकर दो मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, क्लियर होगा, तो लिखेंगे एग्जाम्पल। दो मैट्रिक्स लिखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स ए, सेकेंड मैट्रिक्स बी, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू, लिखिए 8 7 5 4 3 4 6 8 7। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स। बी इज ए मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स का लिखते हैं, बी इज इक्वल टू, लिखिए बी इज इक्वल टू 6 5 2, नेक्स्ट 2 1 2, नेक्स्ट 3
4 2। सो इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड ए माइनस बी, फाइंड आउट ए माइनस बी, ए से बी को माइनस करके दिखाओ। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखो, a माइनस बी इजिकल टू, पहले a को लिखेंगे, a क्या है 875, नेक्स्ट 434, नेक्स्ट 687, दिस इज a माइनस b, b क्या है, b है 652, नेक्स्ट है 212, नेक्स्ट है 342, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट आइटम वाइज कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम वाइज लेस होगा, इसका मतलब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर उसी केस में 6 है, तो फर्स्ट आइटम होगा 8 माइनस 6। नेक्स्ट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो होगा 7 माइनस 5। नेक्स्ट यहाँ पर 5 है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 2 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 2। नेक्स्ट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये होगा 4 माइनस 2। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो होगा 3 माइनस 1। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 माइनस 2। नेक्स्ट यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो होगा 6 माइनस 3। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो होगा 8 माइनस 4। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, होगा 7 माइनस 2। आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू कितना आता है देखेंगे। फर्स्ट 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2। नेक्स्ट 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, नेक्स्ट 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3, नेक्स्ट 8 माइनस 4 4, नेक्स्ट 7 माइनस 2 5। ये मैट्रिक्स आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? ये कितना रो है कितना कॉलम है सर, 3 रो है 3 कॉलम है, इट्स ए 3x3 मैट्रिक्स। इसका मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स 3x3 था, उसमें से एक 3x3 मैट्रिक्स गया, कितना बचा 3x3 मैट्रिक्स बचा। सो दिस इज रिगार्डिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और, ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा हेडिंग करो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन कौन सा 2 तरह का मल्टीप्लीकेशन, पहले लिखिए। फर्स्ट को बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड मल्टीप्लीकेशन इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर।
तो मल्टीप्लीकेशन दो तरह का है। कौन कौन सा दो तरह का? एक है स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एक है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर। व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन? स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स देगा, उस मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर, स्केलर मतलब एक नंबर, नंबर मतलब 8, 7, 6, 5, उसको मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ए देगा 5a निकालना है, या ए देगा 8a निकालना है, या बी देगा 7b निकालना है। 7 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया एक नंबर को मल्टीप्लाई होता है, यहां पर वन नंबर और कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड। और यहां पर क्या होता है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर में? यहां पर टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हेडिंग करो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन अब पढ़ेंगे। अभी मैं बताया स्केलर का मतलब क्या है। स्केलर का मतलब एक नंबर है। तो यहां पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लीकेशन। लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर दिया हुआ है सपोज ए इज गिवन, ए इज गिवन कितना है 3, 4, 5, 6। हमको क्या निकालना है? हमको 5a निकालना है। व्हाट इज 5a? 5a इज इक्वल टू 5 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू ये मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? 3, 4, 5, 6। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हर एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एलिमेंट का मतलब यहां पर फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा? फर्स्ट एलिमेंट होगा 5 इंटू 3। अच्छा सेकेंड एलिमेंट कितना होगा? 5 इंटू 4। थर्ड एलिमेंट कितना होगा? दैट इज 5 इंटू 5। नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा? 6 है, 5 इंटू 6 वैल्यू आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू कितना? 5 इंटू 3 15, नेक्स्ट 5 इंटू 4 20, नेक्स्ट 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 6 30। ये कितना मैट्रिक्स आया? ये आया 2 रो है 2 कॉलम में, 2 इंटू 2। क्वेश्चन में भी उसी तरह से 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दिया था, ए का वैल्यू दिया था, 5a निकालने को बोला था। और एक देखते हैं b इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, फाइंड 3a। कितना निकालना है? 3a। तो क्या करेंगे? 3a इज इक्वल टू 3 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ए कितना? 3b। फाइंड 3b, ये b दिया हुआ है। फाइंड 3b। सो 3b इज इक्वल टू 3 इंटू b। तो b के बदले में क्या लिखेंगे? b के बदले में लिखेंगे 6, 7, 8, 9। तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 3 इंटू 6। हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, फिर 3 इंटू 7, नेक्स्ट होगा 3 इंटू 8, नेक्स्ट होगा 3 इंटू 9। तो वैल्यू कितना आएगा? 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, नेक्स्ट 3 इंटू 8 24, नेक्स्ट 3 इंटू 9 27। ये कितना मैट्रिक्स होगा? ये मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ओवर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट के साथ। स्केलर मल्टीप्लीकेशन उसी तरह से निकलता है। अभी पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर? और मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर में कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
तो लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर। हेडिंग कीजिए। हेडिंग कीजिए मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर का कंडीशन क्या है लिखेंगे। तो लिखेंगे हेडिंग कीजिए multiplication among two matrices is possible. Multiplication among two matrices is possible if, कंडीशन क्या है, कंडीशन है फर्स्ट number of columns in first matrix, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितना कॉलम है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। बेटा ये याद रहेगा कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। फर्स्ट का जितना, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितना नंबर है कॉलम का, सेकेंड मैट्रिक्स में उतना नंबर होगा रो का। नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो जाकर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू, लिखेंगे 1 3 2 1 एंड बी इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 4 1, 4 3 कर लीजिए या 4 5 जो भी लिखिए। तो ये दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है। बेटा ए है और बी है, इसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है क्या? इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा पहले देखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई के लायक है या नहीं। इसमें कितना रो है कितना कॉलम है? सर इसमें 2 रो है 2 कॉलम है। अच्छा इसमें कितना रो है कितना कॉलम है? सर 2 रो है 1 कॉलम। हमारा कंडीशन क्या बोलता है? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। लिखेंगे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? सर 2 कॉलम है, 2 कॉलम। 2 नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स में कितना रो है? सर 2 रो है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो ए एंड बी इज पॉसिबल। क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए इंटू बी, तो ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो लिखेंगे हेंस ए बी, ए इंटू बी एग्जिस्ट एंड कैन बी कंप्यूटेड। अभी देखेंगे ए इंटू बी कैसे निकलेगा। बेटा थोड़ा याद रखो, मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका है। हम इस साइड से जाएंगे, किस साइड से? देखो
फर्स्ट मैट्रिक्स का इस साइड से जाएंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का इस साइड से जाएंगे। मतलब यहां पर हॉरिजॉन्टल जाएंगे फर्स्ट मैट्रिक्स में, सेकेंड मैट्रिक्स में कहां पर जाएंगे, वर्टिकल में जाएंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में मतलब क्या है, मतलब क्या है, इसका फर्स्ट आइटम कितना है 1 और इसका इस साइड का फर्स्ट आइटम कितना है 4, तो फर्स्ट आइटम होगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। बेटा समझ में आ गया, खत्म हो गया। फिर इस साइड में आएंगे, सेकेंड वाला साइड में, सेकेंड वाला साइड में क्या होगा, अच्छा 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 गया। नेक्स्ट सेकेंड, फिर ये वाला रो खत्म हो गया। फिर यहां पर आएंगे 2 इंटू 4, 2 यहां पर है इस साइड में, 2 इंटू 4 प्लस 2 के बाद नेक्स्ट आइटम कितना है 1, तो होगा 1 इंटू यहां पर इस साइड का 5, वैल्यू आ गया। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 कितना है, 1 इंटू 4 है सर 4 प्लस 3 इंटू 5 कितना है, 3 इंटू 5 है 15, 4 प्लस 15। अच्छा 2 इंटू 4 कितना है, 2 इंटू 4 है सर 8, 1 इंटू 5 कितना है 5। सो दिस इज द मैट्रिक्स। दैट इज इक्वल टू कितना आता है 4 प्लस 15 19, फिर 8 प्लस 5 13। सो इट्स ए हाउ मेनी मैट्रिक्स, इट्स ए कितना मैट्रिक्स है, कितना रो है 2, कितना कॉलम है 1। हमको पता है हम अगर क्या करेंगे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 मैट्रिक्स में, हमारा रिजल्ट क्या होगा देखेंगे, कितना रिजल्ट होगा। फर्स्ट का 2 इंटू 2 है, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन में आते हैं ना, सेकंड का फर्स्ट का सेकंड आइटम, सेकंड का फर्स्ट आइटम, ये दोनों काट लो, जो बचेगा वो आएगा। तो 2 रो 1 कॉलम आएगा, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स आएगा। एक्चुअली 2 इंटू 1 मैट्रिक्स आ रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, जो बचा है 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। ए इंटू बी इस तरह से निकालते हैं। और एक क्वेश्चन करेंगे ए इंटू बी का, तो देखेंगे लिखिए सपोज ए इजिकल टू कितना दिया हुआ है 1 2 3, नेक्स्ट 4 5 6, नेक्स्ट 7 8 9। कितना रो कितना कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। ए दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लिखेंगे 1 माइनस 2, नेक्स्ट है 3 माइनस 4, नेक्स्ट है माइनस 5 6। तो ये कितना रो है 3 रो है, कितना कॉलम है 2 कॉलम। हमारा कंडीशन, तो फाइंड ए इंटू बी, ये क्वेश्चन है। अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन पहले देखेंगे, इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है ढूंढेंगे, कितना कॉलम है, C1 है, C2 है, C3 है, 3 कॉलम, 3 कॉलम। नेक्स्ट नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स में कितना रो है ढूंढेंगे, कितना रो है, अच्छा रो है
यहाँ पर रो ढूंढ रहे हैं, तो ये R1, ये R2, ये R3, 3। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, हेंस A into B exist। तो A इंटू बी इज इक्वल टू कितना होगा, मैं बताया था मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है इसका A का इस साइड में जाएंगे, A का कौन सा साइड में जाएंगे, ये वाला साइड में, ऐसे जाएंगे A में, और B में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, B में इस तरह से आएंगे, ए में रो वाइज जाएंगे, ए का रो को बी के कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो देखकर बोलो फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट ए का, फर्स्ट का है 1, इसका है 1, तो फर्स्ट होगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, नेक्स्ट 1 इंटू 1 गया, फिर है इसका सेकेंड आइटम 2, इसका है 3, तो होगा प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। फिर इसका थर्ड आइटम 3, इसका है -5, प्लस 3 इंटू -5, फर्स्ट गया क्या। नेक्स्ट सेकेंड रो का देखेंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करो, सेकेंड रो का किसका, 4 5 6 का, पहले 4 का 1 के साथ, तो हो जाएगा 4 इंटू 1, प्लस 5 को 3 में, 5 इंटू 3, 4 का गया, 5 का गया, फिर 6 का, प्लस 6 इंटू -5, 6 इंटू -5, फिर हम क्या करेंगे थर्ड रो का, 7 इंटू 1, प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर 8 है, 8 इंटू 3, प्लस यहां पर 9 है, 9 इंटू -5। बेटा ये फास्ट हो गया, समझ में आ गया। जिस तरह से इसको किए, फिर सेकेंड रो के साथ उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी किसका कंप्लीट हो गया, ये वाला का कंप्लीट हो गया, अभी सेकेंड वाले के साथ करेंगे। सेकेंड का केस देखते हैं, सेकेंड का क्या होगा, अच्छा फर्स्ट का फर्स्ट आइटम और सेकेंड वाला का सेकेंड रो का फर्स्ट आइटम मल्टीप्लाई करेंगे, इस हिसाब से जाएंगे। तो फर्स्ट होगा 1 इंटू -2, फर्स्ट होगा 1 इंटू -2, प्लस सेकेंड आइटम कितना है 2, 2 है, 2 इंटू -4, प्लस थर्ड आइटम कितना है 3, और इसका होगा 6, तो 3 इंटू 6 हो गया। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो का 4 से शुरू होगा, 4 इंटू -2, प्लस 5 इंटू कितना होगा -4, प्लस 6 इंटू 6। नेक्स्ट लास्ट रो का, ये 7 से शुरू होता है, 7 इंटू -2, प्लस 8 इंटू -4, प्लस 9 इंटू 6। अभी इसका वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, फर्स्ट केस में 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 सर आएगा 1, फिर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6, फिर 3 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -15। ओके, नेक्स्ट आएगा 4 इंटू 1 सर 4, प्लस 5 इंटू 3 15, प्लस 6 इंटू -5 -30। नेक्स्ट 7 इंटू 1 थर्ड रो का 7, प्लस 8 इंटू 3 24, प्लस 9 इंटू -5 -45 हो गया फर्स्ट रो। फिर फर्स्ट रो के बाद क्या, कौन सा रो में जाएंगे, सेकेंड रो का देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे तो 1 इंटू -2 कितना होगा सर -2, प्लस
2 इंटू -4 सर -8। अच्छा नेक्स्ट +3 इंटू 6 सर 18। फिर कितना आएगा 4 इंटू -2 सर -8 सेकेंड वाला का, प्लस 5 इंटू -4 -20, प्लस 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट थर्ड वाला का 7 इंटू -2 सर -14, प्लस 8 इंटू -4 -4 होगा -32। नेक्स्ट प्लस 9 इंटू 6 54। बेटा समझ में आ रहा है क्या? इसमें कितना रो है सर? 3 रो है। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। तो यहाँ पर भी 3 रो 2 कॉलम। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकलेगा, अच्छा 1 + 6 - 15, 1 + 6 7, 7 - 15, 7 - 15 आपका आता है -8। नेक्स्ट 4 + 5 19, 19 - 30, 19 - 30 आएगा -11। नेक्स्ट 7 + 24 31, 31 - 45, 31 - 45 आता है -14। नेक्स्ट यहाँ पर -2 ये हो जाएगा -8 -10 + 10 + 18 -10 + 18 8। यहाँ पर -8 प्लस -20 -28 प्लस 36 36 मतलब यहाँ पर आएगा कितना 8। थर्ड में -14 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू -46 प्लस 54 -46 प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 8। तो मेरे को आंसर मिल गया। इट्स ए हाउ मेनी मैट्रिक्स? 3 रो है। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है। इट्स द आंसर। मैं देखता हूं ये आंसर सही होता है या नहीं। फर्स्ट केस में ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए। कौन कौन सा मैट्रिक्स है? पहले था 3 × 3 वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए 3 × 2 वाला मैट्रिक्स में। तो आंसर क्या होगा? मैं बताया था कैसे आंसर निकालते हैं। इसका लास्ट आइटम फर्स्ट का लास्ट और ये दोनों कट गया, कितना बचता है 3 × 2। तो आंसर आएगा 3 × 2 मैट्रिक्स। ये रफ देखते हैं आंसर 3 × 2 आता है। आंसर 3 × 2 आता है। तो ये हो गया आंसर आया -8 8 -11 8 -14 8। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है क्या? तो आज के क्लास में क्या पढ़े एक समरी बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समरी ऑफ टुडेस क्लास। समरी ऑफ टुडेस क्लास। फर्स्ट पढ़े एडिशन, a + b। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इफ a इज इक्विवेलेंट टू b। ये पॉसिबल होगा अगर a और b इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब a का जितना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, b का उतना नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। इट मींस फुल स्टॉप। इट मींस नंबर ऑफ रो एंड कॉलम in both A and B must be same। तो ये हो गया A + B गया। सेकेंड पढ़े क्या? सेकेंड पढ़े क्या सर? A - B। ये कब पॉसिबल होगा? वही कंडीशन है, पॉसिबल होगा जब A और B कंपेरेबल होंगे। पॉसिबल होगा जब A और B इक्विवेलेंट होंगे। इसका मतलब क्या है? इट मींस number of rows and columns in first is equal to number of rows and columns in second मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़े मल्टीप्लीकेशन।
ओके, मल्टीप्लीकेशन दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में हम क्या निकालते हैं, a इंटू बी निकालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर। बेटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी ना लिखकर उसको क्या लिखते हैं, a इंटू के लिखते हैं। इसका मतलब यहां पर a देगा, क्वेश्चन पूछेगा 5a निकालिए, a इज गिवन, 5a निकालना है, 7a निकालना है, 9a निकालना है, इस तरह का। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एवरी एलिमेंट के साथ k को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर में क्या पढ़े, कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर कब होगा, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अच्छा, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल याद रखो। मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होगा, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए वाला मैट्रिक्स, ये बी वाला मैट्रिक्स। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने का एक ही तरीका है, इसका रो वाइज जाएंगे और इसका कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रो वाइज एलिमेंट को इसका कॉलम वाइज एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाकर हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, with this we will conclude our today's discussion. In your tomorrow's discussion we will discuss regarding division of matrices. Now before concluding, let me tell you, if you have not subscribed my channel, kindly subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press bell icon, and if you like my videos, press like button. And still, if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, biswomishra @gmail.com. Thank you. Thank you for watching my video. Thank you. Thank you. Thank you all. Have a nice day.